ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਹਨੀ ਵਾਲੀਆ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਾਲੋਅਰਸ ਵਿਊਅਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਸਾਡੀ ਮਕਸਦ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵੇਚਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋਰਗੇਜ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਡਰ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸੇਫਟੀ ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫਰਮਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਨੀ ਫੂਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਹੋਸਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਹਨੀ ਵਾਲੀਆ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਆवर ਸ਼ੋਅ ਜੀ। थैंक यू सर, शुक्रिया मेहरबानी बुलाने के लिए जी। सनी जी, सब तो पहला तो तुसी ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਰ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਰ ਸੇਫਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। सो हनी जो आर सेफ्टी कंसल्टिंग एंड ट्रेनिंग कंपनी है, तो जब आप कनाडा में आप कोई भी बिजनेस करते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग हो, कंस्ट्रक्शन हो, ट्रकिंग हो, कोई भी जब आप बिजनेस करते हैं जी, तो उसका जब कनाडा में उसके लॉस हैं ओके कि आप किस बेस पे करेंगे। तो जैसे मैं आपको ये बुक दिखाता हूँ जी, ये ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी हैंडबुक है, ओके, ये अल्बर्टा की है। ओके, तो हर प्रोविंस में ये आपके जो है मिनिमम गाइडलाइंस हैं। जब आप एक बिजनेस करते हैं, वो कंस्ट्रक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, कहीं पे भी जब एम्प्लॉयज इन्वॉल्व हैं, कि जब भी आप किसी को रखते हैं अपनी कंपनी में, तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये मिनिमम गाइडलाइंस हैं। तो अगर आप इस बुक को देखेंगे, इसमें ये भी बताते हैं कि वॉशरूम फैसिलिटीज कितनी होनी चाहिए, कितने स्टाफ के ऊपर, मेडिकल फैसिलिटीज, फर्स्ट एड किट जैसे हैं, किस तरह की फर्स्ट एड किट है, कितने एम्प्लॉयज हैं, कितने लोगों को फर्स्ट एड ट्रेंड होना चाहिए। ओके, तो ये सारी बुक पर ये मिनिमम स्टैंडर्ड है, और ये हर प्रोविंस का अलग अलग है। ਰਾਈਟ। ਜਦੋਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲਣਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਫਟੀ ਜੋ ਫੀਚਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, हाँ जी, उसका जो बेसिक गाइडलाइंस जो हैं, कि जो मिनिमम स्टैंडर्ड जो एक कंपनी को फॉलो करना है, राइट, वो इसके अंदर है। राइट। तो इसमें क्या होता है हनी, कि जब जैसे आपने कंपनी खोला जी, अब वो एक बंदा है, उसमें 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, जितने भी हैं, कि नंबर डज नॉट मेक अ डिफरेंस। तो आपको क्या आपकी ऑब्लिगेशंस हैं जी। जैसे आप कार चलाते हैं, ठीक है, राइट, तो कार एडमिंटन में अगर अल्बर्टा में चलाते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस दोनों चाहिए, राइट, ठीक है। पर जब आप बीसी में जाते हैं तो दोनों एक चीज में कंबाइंड हैं, ओके, ठीक है कि नहीं। राइट। तो ये मैं आपको, जैसे अब आप एक स्टाफ को रखते हैं, तो जब आप स्टाफ रखते हैं तो आप एम्प्लॉयर हैं, राइट, एम्प्लॉयज हैं जी, सुपरवाइजर हैं जी, वर्कर हैं, तो सबका अलग अलग एक रोल है, सबकी अपनी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको क्या करना चाहिए जी। और वो जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो इस किताब में लिखी हैं। ओके, ਰਾਈਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈਗਾ, ਆਰ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। तो जो हमारी जो कंपनी है, जो आर सेफ्टी है, तो आपने जब एक कंपनी खोली, राइट, जैसे आपने एक मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन कंपनी खोली,
तो आपको इसका नॉलेज मतलब नॉलेज है पर एक्सपर्टी नहीं है। Right. तो हम लोग जो है आपके पास जब आपने कंपनी खोला है तो हम लोग जाके आपको हेल्प करते हैं आपका हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप करने के लिए और साथ में मेंटेन करने के लिए। Okay. तो जब आपने एक सिस्टम बनाया है, जब एक सिस्टम है जो एज पर द बुक रिक्वायरमेंट है, जो गवर्नमेंट लेजिस्लेशन है जिसको आपको फॉलो करना है, तो आपको जो हम एक्सपर्ट देते हैं, एक्सपर्टीज देते हैं, नॉलेज देते हैं, स्टाफ ट्रेनिंग करते हैं, एम्प्लॉय ट्रेनिंग करते हैं। फिर इसमें साथ में ये भी होता है कि जब इंसिडेंट हो जाते हैं कि नियर मिस है, इंसिडेंट है, उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट कैसे करना है, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। क्योंकि जब भी कुछ होता है तो गवर्नमेंट ये नहीं बोलती कि आपने क्या किया। राइट। मैं जैसे हमने बोला कि हमने इंटरव्यू किया, राइट, कब किया, क्यों किया, कैसे किया, उसके पेपर वर्क कहाँ है। क्योंकि जब आपका कुछ भी इंसिडेंट सेफ्टी से रिलेटेड होता है और कोर्ट में जाता है और उसके लिए इन्वेस्टिगेशन होती है या वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसमें ये नहीं होता कि मैंने ये क्या कहा था, मैंने उसने क्या कहा था। आपका पेपर वर्क कहाँ है, सबके सिग्नेचर है। वर्बली गल्लां नहीं ਹੁੰਦੀਆਂ, वर्बली नहीं ਹੁੰਦੀ। ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਲੈਤਾ। ਰਾਈਟ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਓਕੇ, ਉਹਦਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਰਾਈਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੀ ਸਪੋਜ਼ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਚਲੋ ਐਜ਼ ਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੋਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਲਾਈਕ ਰੋਲ ਰਹੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲਿਆ ਜਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ 2 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ, 5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ, 10 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੋਲ? जैसे ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜੀ, तो रेस्टोरेंट जिस तरह ऑक्यूपेशन वो है कंस्ट्रक्शन कंपनी है जी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो जो उनकी जो सेफ्टी रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है जो रेस्टोरेंट्स के साथ है। राइट। तो रेस्टोरेंट्स में जैसे सेफ्टी होती है उसमें भी स्टाफ ट्रेनिंग तो है कि कस्टमर को कैसे करना है। अगर आपके पास अगर रॉबरी है, अगर कोई तो लुट्टन आ जाता है तो किस तरह रिएक्ट करना है। राइट। फूड सेफ्टी है, उसमें आप जब आप रेस्टोरेंट है उसमें किचन है, ठीक है। रेस्टोरेंट 2 तरह के हैं, जैसे फास्ट फूड और जो फूड सर्व करते हैं, लाइक फूड सर्व जिनके पास बफे है जी, तो मीट कितनी देर बाहर है, कितने टेम्परेचर पे है, आपका जो फ्रीजर है वो कहाँ पे, मतलब फ्रीजर टेम्परेचर क्या है, कितनी बारी टेम्परेचर आपने चेक किया, फ्रीजर में जो है खाना कैसे आपने स्टोर किया, 6 इंच ऊपर है, जमीन सा तो नहीं लग रहा, मीट और प्रोड्यूस सेपरेटली है, टेम्परेचर पूरा किया है कि नहीं किया, वो सारा है। फिर अगर जैसे आपका डीप फ्रायर है, वॉशर है, वाटर टेम्परेचर, केमिकल टेम्परेचर, फिर आपने केमिकल स्टोर किए हुए हैं तो उसमें विमेस ट्रेनिंग आ जाती है। तो उसमें सेफ्टी है पर उसकी कॉन्सेप्ट सेम है, मतलब उसमें जो चाहिए वो चीज बदल जाती है। ओके। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਿਲਡਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸੌਰੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਰ ਸੇਫਟੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਰੇ, ਸਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਲਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਆਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨੀ ਫੂਲ ਜੀ ਦਾ ਆਰ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਡਿਟੇਲਸ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਨਾ, ਆਰ ਸੇਫਟੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਸੇਂਜਰ ਦੇ ਥਰੂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਨੀ ਫੂਲ ਜੀ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? जो बाय जैसे बुक जो है, ठीक है, जैसे जो लॉ जो कहता है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन कंपनी में आप कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं? ओके। जैसे अब कंस्ट्रक्शन में आप
सब कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, जैसे होम बिल्डर्स हैं, ठीक है, जब होम बिल्डर्स जैसे हम बात करते हैं तो सारा काम वो खुद थोड़ी करते हैं, तो सब कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट है। तो वो भी बाय लॉ है कि सब कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट कैसे करना है, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, इज ऑल्सो रेगुलेटेड। जी, ठीक है। और जब कंस्ट्रक्शन में, जैसे आपका कंस्ट्रक्शन कंपनी है, आपके पास लेबर भी है, आपके पास इंजीनियर्स भी हैं जी, आपके पास वर्कर्स भी हैं जी, तो उसमें फिर आप इक्विपमेंट ट्रेनिंग है, जी, जैसे आप फोर्कलिफ्ट चलाते हैं या टेली हैंडलर चलाते हैं या आप हाइट्स पे काम करते हैं, जी, इक्विपमेंट। सो जैसे अगर अल्बर्टा का जो लॉ है, जी, ठीक, अल्बर्टा का जो लॉ है, अगर आप 10 फीट से ऊपर काम करते हैं, 10 फीट हाइट पे काम करते हैं, तो आपके पास फॉल प्रोटेक्शन होनी चाहिए। फॉल प्रोटेक्शन की ट्रेनिंग है जो 3 साल के लिए वैलिड होती है। फिर फॉल प्रोटेक्शन कब चाहिए कब नहीं चाहिए, जैसे आप रूफ में हैं, कितने एज से कितनी दूर है, उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। फिर फॉल प्रोटेक्शन की ट्रेनिंग है, फिर उसका जो है फॉल प्रोटेक्शन प्लान है, बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स हैं। कंस्ट्रक्शन में फिर आप कन्फाइंड स्पेस में जा रहे हैं, फिर कन्फाइंड स्पेस रिस्ट्रिक्टेड स्पेस भी है। और कन्फाइंड स्पेस, बेसिकली कन्फाइंड स्पेस क्या होता है, जहां पे ऑक्सीजन लेवल बदलता रहता है, राइट, ठीक है। तो उसमें भी 3 स्टेजेस हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो उसकी रिक्वायरमेंट सब डिफरेंट हैं। तो अगर आपका कंस्ट्रक्शन कंपनी है, आप कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहे हैं, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स दूसरी हो जाती हैं। ਓਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਨ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਲਾਈਕ जब हम क्या करते हैं, ठीक है, जैसे हम एक तो स्टाफ ट्रेनिंग करते हैं जी, कि उसको जैसे फॉल प्रोटेक्शन चाहिए या कोई भी ट्रेनिंग चाहिए, इक्विपमेंट ट्रेनिंग चाहिए, फिर उसको कौन सा प्लान चाहिए, लाइक फॉल प्रोटेक्शन प्लान बनाना है, डेली हैजर्ड असेसमेंट है, स्टाफ ट्रेनिंग है, आज आप क्या कर रहे हो, तो उसको हम मेंटर करते हैं, उनको हेल्प करते हैं कि ये डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए और ये करने हैं। और फिर जब हम साइट विजिट्स करते हैं तो फिर हम देखते हैं कि वहां पे उन्होंने ये काम किया है कि नहीं किया है, और अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया। तो प्रोएक्टिव रहते हैं कि इंसिडेंट से पहले स्टाफ के पास, एम्प्लॉय के पास सारी इंफॉर्मेशन है, जो भी वो कर रहा है उसके रिलेटेड उसके पास पूरी सपोर्ट है, राइट। तो लीड जो उसको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए या ट्रेनिंग चाहिए, जो पेपर वर्क उसको कंप्लीट करना है जी, वो उसके पास सारा है, तो हम उसमें हेल्प करते हैं। ਰਾਈਟ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੇਫਟੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? उसमें नुकसान जो ये है कि जब आपके पास कोई भी इंसिडेंट होता है, जी, जब कुछ हो जाता है जी, तो एज ए एम्प्लॉयर वो आपसे पूछते हैं कि आपने क्या किया, क्योंकि वो आपकी ऑब्लिगेशन है। तो आपको जैसे ये बुक्स है जो ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी है, राइट, हर प्रोविंस ने अपने गाइडलाइंस बनाई हैं, अल्बर्टा की भी है, बीसी की भी है, हर प्रोविंस की अपनी है जी, पर जो रेगुलेटेड है इज बाय फेडरल, और ये क्रिमिनल ऑफेंस है। तो अगर जब है आपके पास कुछ भी हो जाता है, इंसिडेंट हो जाता है, इट वुड बी प्रॉपर्टी डैमेज, इट वुड बी एनवायरमेंट डैमेज, इट वुड बी लाइफ लॉस, और कुछ भी अगर जब हो जाता है तो वो फेडरल गवर्नमेंट जो ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी, पुलिस, फेडरल गवर्नमेंट, ये सारा जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती हैं, और फिर उसमें बोलते हैं कि आपने ये क्यों नहीं किया, क्योंकि ये आपकी ऑब्लिगेशंस थी जो आपको पूरी करनी थी। तो फिर तो आपकी एज ए कंपनी, जब आप एम्प्लॉयर हैं या आपके पास एक कंपनी है जी, तो बाय लॉ आपको ये करना है। ओके। आप नहीं करते तो ये आपकी, अगर कुछ हो जाता, इन केस कोई हो जाता है, हो जाता है तो ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ आएगा। Right. फिर जो ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी के जो ऑफिसर्स हैं वो भी साइट विजिट्स करते हैं, वो रेस्टोरेंट्स में भी जाते हैं, वो कंपनीज में भी जाते हैं, फिर वहां पे वो जाके देखते हैं कि जो स्टाफ है उसके पास प्रॉपर ट्रेनिंग है कि नहीं है, उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं कि नहीं। फिर वो नहीं होते तो वो फिर नोटिस करते हैं उसको, एम्प्लॉयर को, कि आप ये डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करो। राइट। और अगर वो प्रोड्यूस नहीं कर पाता तो उसको फाइन्स भी दे सकते हैं।
ओके जैसे अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, जी, आपके पास ड्राइवर लाइसेंस नहीं है, डेफिनेटली। तो आपका मतलब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ड्राइवर ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਚਾਹੀਏ और ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚਾਹੀਏ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਨਾ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਨ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਦਾਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? तो जैसे हम लोग जब कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं जी, तो कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, उसको कितना चाहिए। तो जब कंपनी बोलते हैं कि मेरे पास 6 एम्प्लॉयज हैं या 10 एम्प्लॉयज, कितने एम्प्लॉयज हैं और हम क्या क्या करेंगे, राइट, कितना सपोर्ट देंगे जी, और कितना सपोर्ट वो खुद करेगा, ओके, तो उस हिसाब से फिर हम उसको बिल करते हैं। तो इस वो जो है सरप्राइज नहीं होता है। जैसे मैं आपके पास आया, आपका ये कंपनी ए है जी, मैं ये करूँगा और इस दिन करूँगा और ये मेरी ड्यूटीज हैं, ओके, तो इज इन राइटिंग ऑल्सो। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਕੀ ਮੰਥਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਐਨੂਅਲ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਥਰੂ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚਲੋ ਜੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਨੇ, ਅਗਰ ਬਿਲਡਰਸ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ? जैसा बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट है, राइट, अगर आप एक घर बना रहे हैं, बिल्डर हैं जी, तो आपने बिल्डिंग, तो हम लोग उसमें जो है डिपेंड्स कि वो कितना, डिपेंड्स ऑन कि उसमें कितना काम है कि वो क्या करना चाह रहे हैं। तो बट हम सबको रिकमेंड करते हैं मंथली विजिट। तो एक तो इज अ रिक्वायरमेंट टू एटलीस्ट वंस अ मंथ यू हैव टू डू अ विजिट। कुछ चीजें जैसे एनुअल ड्रिल है वो एनुअली है, तो उसके अंदर जैसे हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी मीटिंग्स हैं जी, जो डिफरेंट है जॉइंट हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी। जी, तो जॉइंट हेल्थ एंड सेफ्टी जैसे आपके कितने लोग हैं, जी, तो आपको रैप चाहिए, जॉइंट हेल्थ एंड सेफ्टी रैप चाहिए या कमेटी चाहिए, वो भी एक रिक्वायरमेंट है, राइट। तो उसमें उसको हेल्प करते हैं कि उसकी मीटिंग्स करने में, उसको डॉक्यूमेंटेशन करने में। तो फिर हम सरप्राइज विजिट करते हैं साइट पे। राइट, सरप्राइज विजिट इसलिए कि पहले नहीं बताते, बट जो मैनेजर है उसको पता होता है। हम जाके देखते हैं कि उसने ये सब काम किया है कि नहीं किया है, नहीं किया, या उसके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं या उसके पास पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है कि नहीं है, राइट, और वो नहीं है तो क्यों नहीं है। राइट। तो सरप्राइज से होता है कि उनको जो है होता है कि मैंने तो ये पेपर वर्क करना है, और जब आप पेपर वर्क करते हैं, जब आपने देखा है कि मुझे आज ये करना है और मेरे पास ये चीजें नहीं है करने के लिए, तो एक बेल सी रिंग हो जाती है, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे लेना चाहिए। राइट, जैसे आप सुबह कार उठाते हैं, राइट, बच्चे को छोड़ने जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, देखते हैं वेदर कंडीशन कैसी है, राइट, बाहर जाते हैं, कार 5 मिनट पहले स्टार्ट करनी है, बर्फ साफ करनी, तो ये एक आपने एक तरह से जो है ना अपना एक प्लान सा बना लिया जी, पर वर्क में इट हैज टू बी डॉक्यूमेंटेड, राइट, बिकॉज यू हैव टू प्रूव आई हैव डन दैट। ਰਾਈਟ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਰ ਸੇਫਟੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਸ ਨੂੰ ਆਰ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਆਰ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? मैं कंस्ट्रक्शंस को, मैन्युफैक्चरिंग को जी, ट्रकिंग को, क्योंकि ट्रकिंग भी एक रेगुलेटेड बिजनेस है, राइट, तो उसमें जो आप डेली आपका जो आवर ऑफ सर्विस है, इंस्पेक्शन बुक्स हैं, उसकी भी सेफ्टी मीटिंग्स हैं, ट्रेनिंग है, ड्राइवर फाइल्स हैं, वो सारा देखते हैं। जो कंस्ट्रक्शन है उसमें स्टाफ ट्रेनिंग, इक्विपमेंट ट्रेनिंग, सेफ्टी मीटिंग्स, वो सारा देखते हैं। तो जो भी कंस्ट्रक्शन है, जैसे रेस्टोरेंट हैं जी, उसमें हम जाके देखते हैं कि उनके पास प्रॉपर वेमएस ट्रेनिंग है कि नहीं है, उसमें अगर वो है रॉबरी ट्रेनिंग है कि नहीं है, और जैसे अब आपका गर्म तेल है जहाँ पे आप डीप फ्राई यूज़ करते हैं, वहाँ पे प्रॉपर साइन पोस्टेड है कि नहीं है। क्योंकि जब हम सेफ्टी में बात करते हैं खाली फिजिकल सेफ्टी नहीं है, फिजिकल इसमें मेंटल भी है। जैसे हरासमेंट है, अब हरासमेंट में आप क्या कह रहे हैं और उसको जो मैंने और आपसे बात कर रहे हैं उसमें खाली मैं और आप बात नहीं कर रहे हैं, जो तीसरा बंदा सुन रहा है वो क्या परसीव कर रहा है। राइट, जैसे जोक्स हैं, हमने जोक मारा,
ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋਕ ਮਾਰ ਜੋਕ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੋਕ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜੋ ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਦਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, राइट। तो उसकी भी ट्रेनिंग देते हैं। अब वायलेंस है जी, वायलेंस जो है वर्बल भी हो सकता है, जी, फिजिकल भी हो सकता है, राइट। हम वैसे बात करें कि मैं वर्बली आपको अब्यूज कर रहा हूँ, यू नो, वो सारा चीजें वो ट्रेनिंग में, और उनके पास पॉलिसीज प्रोसीजर होने चाहिए, और उसको एवरी ईयर रिव्यू होना चाहिए। तो उस चीज के लिए हम हर कंपनी को हेल्प करते हैं। राइट, ठीक है जी। थैंक यू सनी जी, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਆਰ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਨੀ ਫੂਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਰ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਟਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਰ ਸੇਫਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਨੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਨੀ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ? जब the only thing I can say, better to be safe than sorry जी। अगर आपके पास एक कंपनी है और आपने एम्प्लॉयज या एम्प्लॉयर्स रखे हुए हैं, या आप छोटी है या बड़ी है, तो एक बारी जरूर चेक कीजिए, कॉल करके चेक कीजिए कि आपको हम क्या सर्विस दे सकते हैं जी। और एक चीज याद रखिए कि एज ए एम्प्लॉयर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका स्टाफ सेफ रहे। ਰਾਈਟ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਮਨਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਥਰੂ ਦਾ ਆਈਜ਼ ਆਫ ਅ ਵੂਮਨ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਸਾਡਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੇ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹਨੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।